चलो ऑक्साइड्स, ग्रुप 17 ऑक्साइड्स, राइट। सो इसमें हमने क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, एक सेकेंड। सो ग्रुप 17 ऑक्साइड्स में बेसिकली फ्लोरीन जो होता है, halogens form many oxides with oxygen, but most of them are unstable. Fluorine forms only two oxides, that is OF2 and O2F2, in which OF2 is thermally stable at room temperature. These are called oxygen fluoride because of the high electronegativity of fluorine. Means these are called oxygen fluoride, not fluorooxide. Question भी आता है कि why OF2 is called oxygen fluoride? So answer is because of high electronegativity of fluorine. Both are strong fluorinating agent. Now, fluorine हो गया. Chlorine, bromine, iodine form oxides of oxidation state from +1 to +7. +1 to +7. The kinetic and thermal stability oxides formed by halogen order is iodine, I, Br, and Cl. Okay, so Cl, Br, I form oxides from all oxidation state from +1 to +7. Okay, but the stability is maximum for iodine, then bromine, then chlorine. The higher oxides are more stable than lower oxides. तो जो भी तुम्हारे higher oxides होते हैं, that means +7 oxidation state oxides are more stable than +1 oxides. अब एक एक करके देखते हैं. Cl oxides, chlorine form these oxides all. This is +1 state, +4 state, +6 state, +7 state. Okay, so these are the chlorine oxides: Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7. Already we have discussed, as the oxidation state increases, acidic strength also increases and oxidizing character also increases. So which one is a strong acid? Cl2O7. Okay, so this is the order of acidic character and oxidizing character, and the reason is increase of oxidation state. This is +1 oxidation state plus, and this is +7. So oxidation number increases, acidic strength and oxidizing character both increases. Now you can see Br oxide. Br oxides also form like this only. Again, take care, there's nothing, same order, same reason. Even iodine also, they also form all oxides, and the same reason. As the oxidation state increases, acidic and oxidizing character both increases. So nothing exception. Now come to the next point, reactivity with metal oxides completed. Now second property, next property is reactivity with metal. Halogens react with metals to form metal halide. Okay, and metal halides are ionic in nature, but this ionic nature depends, maybe covalent nature also, means we have to discuss about Fajan's rule. So any metal reacts with halogen to form metal halide, and this metal halides are ionic in nature, but sometimes covalent nature also. This is due to Fajan's rule. Okay, and what is Fajan's rule? All of you know. Anybody can say what is Fajan's rule? Okay, so you can see here also ionic character. When metal reacts with fluorine, or we can say metal fluoride is more ionic than metal chloride, then metal bromide, then metal iodide. So always fluoride more ionic than chloride, then bromide, then iodide, and the reason is only electronegativity. All of you know fluorine is the most electronegative element, so the compound is ionic in nature. Okay, small size and high electronegativity. तो जितना छोटा size होगा, जितना ज़्यादा negative होगा, the compound will be ionic in nature. Small size, leave it, not small size. Just a minute. So basically we can say that this is ionic in nature. Fluoride compounds are ionic in nature because of high electronegativity. That you know. Suppose कि तुम्हारे पास क्या है, NaF है, NaCl है, NaBr है, तो what is the order of acidic character? Ionic character that you can write. Okay. Similarly, covalent character that depends on Fajan's rule. Okay, all of you know Fajan's rule क्या होता है? According to Fajan's rule, smaller size of cation and larger size of anion, that is more covalent in nature.
ओके, जितना छोटा कैटायन होगा, जितना लार्ज एनायन होगा, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो अगर ये आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर ये है तो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हैलाइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ओके, एक तो ये हो गया कि फजान्स रूल के अकॉर्डिंग द स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन एंड द लार्जर साइज ऑफ एनायन इज मोर कोवेलेंट इन नेचर। एंड सेकेंड, द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और वी कैन से हायर चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज होगा या जितना हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, दैट विल बी मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। तो अगर दो कंपाउंड दिया हुआ है, पूछा गया विच वन इज मोर कोवेलेंट इन नेचर, तो यू हैव टू सी ईदर साइज और ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मान लो एक एग्जांपल ही दे देती हूँ, SnCl4 एंड SnCl2, विच वन इज मोर कोवेलेंट इन नेचर? सो SnCl4 इज मोर कोवेलेंट नेचर देन SnCl2, बिकॉज यहाँ पे Sn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +4, एंड दिस इज +2। सो हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर कोवेलेंट नेचर। तो कहीं भी कर सकते हो, जितना ज्यादा चार्ज होगा वो कोवेलेंट नेचर होगा। These are the few examples. Okay. Now come to the next compound, that is halides. ये तुम्हारा ग्रुप 17 खुद ही हैलाइड है, इसका नाम ही है ग्रुप 17 को खुद ही हम हैलोजन कहते हैं, और इस हैलोजन का भी हम हैलाइड्स कर रहे हैं। एक्चुअली में ग्रुप 17 जो होता है वो दो तरह की चीजें बनाता है। जस्ट अ मिनट वेट। ओके, ग्रुप 17, ग्रुप 17 जो होता है वो क्या होता है, ग्रुप 17 को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो एक्स है या तो सेम एक्स से कंबाइन करता है या डिफरेंट एक्स से कंबाइन करता है। अगर सेम एक्स से कंबाइन करता है तो हम इसको X2 कहते हैं, एंड X2 इज कॉल्ड हैलोजन, जिसे कहते हैं, जैसे मान लो फ्लोरीन फ्लोरीन के साथ कंबाइन करता है तो उसे क्या कहते हैं, फ्लोरीन। तो हैलोजन इज नथिंग बट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो ग्रुप 17 में जो X होता है दैट इज हैलोजन होता है, वो हैलोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, सेम के साथ कंबाइन कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड हैलोजन। बट अगर एक X दूसरे X के साथ डिफरेंट हैलोजन के साथ कंबाइन करता है तो इसे अगर हैलोजन कहेंगे तो इसे क्या कहेंगे, इंटर हैलोजन कहेंगे। तो सेम को हैलोजन कहते हैं, और जब दो डिफरेंट हैलाइड कंबाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड इंटर हैलोजन। तो इंटर हैलोजन का मतलब होता है टू डिफरेंट X। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे अगर ये XCl है तो ये तुम्हारा Cl नहीं होगा, इट विल बी फ्लोरीन। तो ग्रुप 17 में देयर इज अ टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन पॉसिबल, वन इज द हैलोजन एंड सेकंड इज द इंटर हैलोजन। तो हैलोजन तो पूरे चैप्टर ही हम स्टडी कर रहे हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इंटर हैलोजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर हैलोजन? इट इज क्लियर, व्हेन द टू डिफरेंट हैलाइड bonded with each other is called interhalogen. One is the X, another will be different X. Okay, so we are representing X dash. ठीक है, so what is interhalogen? Interhalogen is a binary compound of two different halogen. ठीक है, and its general formula is X X dash N. Okay, तो हम इसको यहाँ पे N भी लगा रहे हैं. What is the meaning of N? This N means it depends how many. This is the central atom and this is the surrounding atom. तो एक तुम्हारा सेंट्रल एटम हो गया, दूसरा तुम्हारा सराउंडिंग एटम हो गया। अब सराउंडिंग एटम के कितने नंबर होंगे उसके अकॉर्डिंग हम इंटर हैलोजन को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ इंटर हैलोजन? X X डैश N। ओके, X जो है वो फर्स्ट वाला जो होता है उसे सेंट्रल एटम कहते हैं, और X डैश को हम सराउंडिंग एटम कहते हैं। अब यहाँ भी एक कंडीशन होता है कि सेंट्रल एटम कौन हो सकता है, सराउंडिंग एटम कौन हो सकता है। ठीक है, आई एम जस्ट राइटिंग ओवर हियर। तो X and X dash N, this is central atom, and the central atom has always large size and less electronegative. And this is surrounding atom, which is vice versa. Surrounding atoms should be small size and high electronegativity. तो जो तुम्हारे दो एलिमेंट्स हैं X, जब X डैश के साथ कंबाइन करता है तो अपने आप तुम बता सकते हो कि फर्स्ट वाला कौन होगा, सेकेंड वाला कौन होगा। सपोज इफ आई से कि आई हैव गिवन टू थिंग्स, सपोज वेयर आई शैल राइट, कहाँ लिखूं यार। सपोज इफ आई एम टेलिंग आई हैव गिवन यू आई, ठीक है, और दूसरा मैंने तुम्हें दे दिया है F दे दिया है। Now you tell me which one will be central atom? Iodine. Yeah.
तो जो तुम्हारा बिगर साइज है वो सेंट्रल एटम होगा, जो स्मॉलर साइज है एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सराउंडिंग एटम हो गया। तो IF लिखोगे। अब तुम्हारा आई का साइज इतना बड़ा है कि कितने भी फ्लोरीन के साथ ये कंबाइन कर सकता है। ओके, आपको पता है कि जो हैलोजन है इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन, हाईएस्ट क्या होता है +7। तो +7 तक जा सकते हैं, फिर दो दो करके डिक्रीज कर सकते हो, +7 +5 +3 +1। यानी कितने इंटर हैलोजन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, +7 का इंटर हैलोजन होगा। +7 का मतलब 7 हैलोजन चाहिए। यानी यहाँ पे हम +1 से स्टार्ट करते हैं, जैसे ये +1 स्टेज में है, ठीक है, एक के साथ कंबाइन है, ठीक है, 3 के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं तो +3 हो गया, ठीक है। अब ऑड में तुम चलते जाओ, दो दो इंक्रीज करते जाओ, IF5 हो सकता है एंड IF7 हो सकता है, तो मैक्सिमम तुम्हारा 7 तक जा सकता है। यानी आयोडीन जो होता है इतना लार्ज साइज होता है कि वो एक फ्लोरीन के साथ नहीं 7 फ्लोरीन के साथ भी कंबाइन कर सकता है। तो दिस इज कॉल्ड इंटरहैलोजन। So what is the meaning of interhalogen? Interhalogen is a combination of two different halides in which the larger halide act as a central atom and the smaller act as a surrounding atom. ठीक है, and high electronegativity. तो तुम्हें जैसे मैंने आई का एग्जांपल दिया वैसे तुम्हें किसी का भी एग्जांपल दूंगी। अगर मैंने कहा Br एंड आई, अब बताओ यहाँ पे कौन सेंट्रल एटम होगा? ऑब्वियसली जिसका बड़ा साइज है, विच वन इज द आयोडीन। साइज? क्या डाउन द ग्रुप आयोडीन। नीचे वाला आयोडीन। आयोडीन। तो फिर से ये सेंट्रल एटम हो गया और Br इसके साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा, चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, राइट। अगर हमने दिया कि Cl दे दिया और Br दे दिया, नाउ विच इज द सेंट्रल एटम? ब्रोमीन। ब्रोमीन, ठीक है। तो फिर अगर हमने Cl दे दिया और F दे दिया तो क्या कॉम्बिनेशन होगा? क्लोरीन होगा ना सेंट्रल एटम। यानी तुम यहाँ पे कंक्लूड क्या कर सकते हो कि क्या फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम हो सकता है? नहीं। नो। तो फ्लोरीन कैनॉट बी एज अ सेंट्रल एटम। व्हाई फ्लोरीन कैनॉट बी एज अ सेंट्रल एटम? सबसे छोटा होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ओके, तो यहाँ पे बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है कि ClF3 इज नोन while FCl3 compound is unknown. Cl3 compound is possible while FCl3 compound is not possible. तो इसका क्या आंसर लिखोगे? Why FCl3 compound is not possible? No, because Cl atom is more bulkier than F, so it cannot form the bonds. बिल्कुल, या फ्लोरीन के टर्म में भी बोल सकते हैं कि फ्लोरीन इज अ स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड इवन फ्लोरीन में तो एक और भी ऐड कर सकते हो, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल इवन आल्सो, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरह से अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता चल गया तो यू कैन गिव द आंसर। कोई लर्निंग की जरूरत नहीं है कि तुम एक एक आंसर याद कर रहे हो, एक एक क्वेश्चन याद कर रहे हो, ओनली यू नो द कॉन्सेप्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन पुट ऑन करती हूँ विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देखो। अच्छा ये बताओ, यू टेल मी, दिस इज इंटर हैलोजन एंड one is a halogen. If I'll ask which one is more reactive, then what will say? If I will ask, my question is not clear to you. अगर मैं पूछती हूँ कि हैलोजन में एंड इंटर हैलोजन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, क्या बोलोगे? Fluorine. अगर मैं कहती हूँ Cl2 एंड ClF3, या ClF ले लो, इन Cl2 and if I'll ask कि if I'll ask कि in Cl2 and ClF, which one is more reactive? What you'll say? कोई भी प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ और बताओ। ना तो मैंने तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट बताया है और ना मैंने तुम्हें कुछ अभी कुछ याद करने के लिए कहा है। अपने आप तुम इसको सोचो, फिर खुद जब सोचोगे तो तुम्हें आंसर खुद निकल के आ जाएगा, फिर तो तुम्हें किसी भी क्वेश्चन को याद करने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट विल बी द आंसर, टेल मी। CLF. हम्म, CLF. ओके, व्हाई?
मैम फजान्स रूल। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, चलो, इट इज मोर रिएक्टिव, आंसर इज दिस कि CLF मोर रिएक्टिव देन Cl2। रीजन थोड़ा और सोचो। चलो, अगर तुम इसका स्ट्रक्चर बनाते हो तो और शायद तुम्हें क्लियरली समझ आएगा। चलो, मैं CLF का बॉन्ड बना देती हूँ और यहाँ Cl2 का भी बॉन्ड बना देती हूँ। अब ये बताओ, यहाँ विच वन इज मोर नेगेटिव? इन CLF विच वन इज मोर नेगेटिव? Fluorine. तो दो, फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव। जो नेगेटिव होता है दैट कैरीज नेगेटिव चार्ज, तो ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इज पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव। तो जब यहाँ पे चार्जेस अपीयर हो गए, एक नेगेटिव हो गया एक पॉजिटिव हो गया, मीन्स पोलैरिटी अपीयर हो गया, पोलर हो गया ये। और जब कोई चीज पोलैरिटी बढ़ जाती है तो बॉन्ड क्या होता है, वीक हो जाता है, ब्रेक कर जाता है जल्दी, एंड मोर रिएक्टिव हो जाता है। तो इट इज पोलर ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस it is polar in nature, so bond length is more, so low bond dissociation energy means easily break। और जिसकी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो रिएक्टिव हो जाता है। नाउ इन द केस ऑफ क्लोरीन, यू सी विच वन इज मोर नेगेटिव? मुझे नॉन पोलर होता है। नहीं है ना यहाँ पे, तो नॉन पोलर हो गया। और जहां पोलैरिटी नहीं होती उसके बॉन्ड ब्रेक नहीं जल्दी होते हैं, दैट मीन्स व्हाट, इसके रिस्पेक्ट में ये जल्दी ब्रेक नहीं होगा, हाई बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी होगा। तो तुम इसको एक सिंपल कंक्लूजन के फॉर्म में निकाल सकती हो, नॉट फॉर दिस क्वेश्चन ओनली, फॉर एनी क्वेश्चन। तो तुम ये बताओ, जो CLF है ये है क्या? CLF इज व्हाट? इट इज व्हाट? इंटरहैलोजन कंपाउंड। एंड Cl2 इज व्हाट? हैलोजन। तो क्वेश्चन अगर जनरल भी आ जाता है कि वाई इंटर हैलोजन इज मोर रिएक्टिव देन हैलोजन, तो हर इंटर हैलोजन के लिए यही आंसर लिख सकते हो कि इंटर हैलोजन इज बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है। बस 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 इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस, सो बॉन्ड पोलैरिटी एंड हेंस बॉन्ड इजीली ब्रेक। समझ आ गया? एक्सेप्ट फ्लोरीन, ऑल इंटर हैलोजन मोर रिएक्टिव देन हैलोजन, ये सभी के लिए होता है, बट एक फ्लोरीन जो होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। एक्सेप्ट फ्लोरीन, वो सब जो कि वो फ्लोरीन जो होता है मोस्ट रिएक्टिव होता है, इवन इंटर हैलोजन से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसका रीजन है कि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एंड फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव होता है rather than this because fluorine has very low bond dissociation energy। तो फ्लोरीन के अलावा सारे हैलोजन लेस रिएक्टिव होते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, समझ आ गया बच्चे? यस Yes, ma'am. ओके। नाउ अब मैं अभी तक तुम्हें मैं अभी इसके लैंग्वेजेस पढ़ाया बताया नहीं, तुम्हें अब खुद तुम समझ जाओगे कि व्हाट इज दिस लैंग्वेज। अब आ जाओ, इसमें इंटर हैलोजन में 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो जो मैंने 2 क्वेश्चंस डिस्कस किया कि वाई ClF3 इज नॉट पॉसिबल, वाई FCl3 इज नॉट पॉसिबल, वाई इंटर हैलोजन मोर रिएक्टिव, ठीक है, विच वन विद द सेंट्रल एटम, विच वन विद द सराउंडिंग एटम, यही सारे क्वेश्चन आते हैं। और एक जो क्वेश्चन आता है वो शेप पे आता है। शेप तुम्हें कोई भी याद करने की जरूरत नहीं। इफ यू नो द वेस्पर कॉन्सेप्ट यू कैन easily draw the shape even also। okay, I will show you even also। इस पे तो ड्रॉ नहीं कर सकती हूँ ना मैं, कि कर सकती हूँ? मैम कर सकते हो, वो लिखा है ना ड्रॉ। ओके, आज मेरा मन नहीं कर रहा स्टाइलस पे, इसी पेज पे करती हूँ, वर्ड फाइल पे करती हूँ। okay, now you can see the draw even also, I will draw it। okay, now the shape of the interhalogen। तो जितने भी तुम्हारे इंटर हैलोजेंस हैं उनकी शेप ड्रॉ करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फर्स्ट आई विल टेल यू व्हाट आर द फॉर्मूला ऑफ इंटर हैलोजन XX-N। ओके, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। ओके, नाउ N will be what? N will be anything। N is an integer number, that means it will be anything। I just show you। If suppose
नाउ x x डैश क्या रहा है ऐसे, ठीक है. If suppose xx dash means if n is 1, xx dash. If n is 3, xx dash 3. If n is 5, xx dash 5. If n is 7, xx dash 7. तो तुम्हारे इंटर हैलोजन की इतनी पॉसिबिलिटी है. And what is the oxidation state in all cases? The oxidation state is what? +1. ठीक है. ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारा क्या होगा, जो दिख रहा वही है, +1 +1 +3 +5 +7 +5 +7. ठीक है. नाउ व्हाट इज अ हाइब्रिडाइजेशन एंड व्हाट इज अ शेप. ठीक है. अगर हम शेप की बात करते हैं, पहले एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं. व्हाट एलिमेंट्स पॉसिबल. नाउ हियर एक्स विल बी, जो भी तुम्हारा होगा वो क्या होगा, सराउंडिंग एटम होगा. ठीक है. नाउ यू कैन सी, ओके, इफ सपोज एक्स इज फ्लोरीन, देन व्हाट विल राइट, एक से. अब यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या क्या हो सकता है बताओ. फर्स्ट केस में सेंट्रल एटम की क्या क्या क्लोरीन पॉसिबिलिटी. ब्रोमीन आयोडीन. हम स्टार्ट करते हैं क्लोरीन से. फ्लोरीन तो कभी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे ClF होगा सिर्फ. चलो अब Br ले लो. Br किसके साथ बना सकता है, F के साथ भी और क्लोरीन के Cl के साथ साथ भी बना सकता है. हाँ, Cl तो हो सकता है ना सराउंडिंग एटम. अब I को तुम ले लो. I किसके साथ क्यों ऐसे चला जाए, आयोडीन ब्रोमीन और क्लोरीन तीनों के साथ बना सकता है. तो तुम्हें खुद ही इसका आंसर निकल गया कि किसके साथ क्या फॉर्म हो सकता है. अगर तुम आई लेते हो तो तुम्हारा आई तुम्हारा एफ के साथ भी हो सकता है, आई तुम्हारा सीएल के साथ भी हो सकता है, और आई तुम्हारा बीआर के साथ भी हो सकता है. ऐसे क्यों आ रहा है शेडेड. मैम ड्रॉ विद टच हटा दो. क्या क्या हटा दो. मैम वो लिखा है ना साइड में ड्रॉ विद टच, उसको हटा दो. हाँ अब लिख लो. ठीक है. नाउ ये हो गया तुम्हारे फर्स्ट केस की बात कर रही हूँ. ठीक है. सेकेंड में बताओ व्हाट इज अ पॉसिबिलिटी. सबसे पहले हम Cl ले ले सेंट्रल एटम, ClF3. Br we can take BrF3, BrCl3. ये थोड़ा लेस स्टेबल होता है बिकॉज थोड़ा हिंड्रेंस हो जाता है. IF3, ICl3, IBr3. अगेन थोड़ा IBr3 लेस स्टेबल हो जाता है बिकॉज बहुत ज्यादा साइज इंक्रीज कर जाता है. ना इन दिस केस ClF ले लो. ClF5 इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता, वेरी लेस स्टेबल होता है. ठीक है. बिकॉज यहाँ पे थोड़ी हिंड्रेंस आ जाती है. Cl इतना बड़ा साइज नहीं कि 5 फ्लोरीन को वो एक्सेप्ट कर सके. स्टिल समटाइम पॉसिबल. BrF5, क्या यहाँ पे BrCl5 पॉसिबल होगा, नॉट एट ऑल, बिकॉज बहुत नहीं. हिंड्रेंस हो जाता है. आई के केस में सिर्फ IF5 होता है, बाकी रेस्ट पॉसिबल नहीं होता. ICl5, IBr5 नॉट पॉसिबल. तो यहाँ पे F के केस में, 5 के केस में सिर्फ हमारे फ्यू कंपाउंड्स नोन है. एंड व्हाट अबाउट 7, क्या ClF7 होगा, नॉट एट ऑल. क्या BrF7 होगा, नॉट एट ऑल. तो इस केस में सिर्फ एक ही कंपाउंड नोन है, दैट इज IF7. नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, राइट. तो तुम अपने आप बना सकते हो कि किसमें कितनी पॉसिबिलिटी है साइज के अकॉर्डिंग. आई का साइज चूंकि बहुत लार्ज होता है तो इट कैन होल्ड 7 फ्लोरीन इवन ऑल्सो. अब आज हम शेप की बात करते हैं. अगर हम शेप की बात करते हैं तो हमें कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है. ओनली वी हैव टू नो अबाउट द दैट सिंपल कॉन्सेप्ट. अगर आई है तुम्हारे पास, सपोज हमने कोई भी एक सेंट्रल एटम ले लिया, और तुम्हें बस वेस्पर थ्योरी को ही अप्लाई करना है, राइट. मैम इसका हो जाएगा sp3 XX वाले का, XS डैश वाले का. ठीक है. क्यों आ रहा है ऐसे, इट इज कमिंग लाइक दिस. बच्चे बोलो. हम्म ओके.
जैसे हमने ले लिया आई के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चे। 1 2 3 4 5 6 7। अगर तुम्हारे पास, अब तुम आई को ही लेके अगर चल रहे हो, किसी भी एक सेंट्रल एटम को लेके चल रहे हो, तो यू टेल मी इन केस ऑफ आई एफ व्हाट विल बी द शेप? ठीक है, कर लोगे बच्चे? वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग आई डोंट थिंक इट इज रिक्वायर्ड वंस अगेन। बोलो बच्चे, शेप क्या होगा इसका? Yes, ma'am. IF7 का मैम sp3 d3। ठीक है, जैसे आई एफ ले लो, एक ही सराउंडिंग है ना यहाँ पे। तो आई एफ के केस में फ्लोरीन एक है, तो तुम्हारा एक दिस इज ओनली वन बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कितने हो गए? 1 2 3 लोन पेयर्स, टोटल इज 4। 4 का मतलब sp3। sp3 मीन्स टेट्राहेड्रल, बट आई एफ एक ही फ्लोरीन है यहाँ पे, तो लीनियर शेप हो गया। बाकी 3 पे तुमने क्या दिखा दिया? लोन पेयर दिखा दिया, राइट। तो द शेप इज, तो जितने भी फर्स्ट वाले हैं उनका शेप तुम्हारा क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। सो फर्स्ट केस द शेप विल बी लीनियर एंड हाइब्रिडेशन विल बी sp3 फर्स्ट केस में, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट केस, ठीक है। नाउ कम टू द सेकेंड केस, IF3। IF3 में यही देखो, 3 फ्लोरीन है, एक T फ्लोरीन, shape हो 2 जाएगी फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, यानी 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा। तो इस केस में तुम्हें 3 बॉन्ड पेयर्स दिख रहे हैं, ठीक है। एंड 1 2 3 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स। व्हाट इट्स कमिंग? T shape हो sp3d। जाएगी मैम 5, sp3d। दैट sp3d। शेप भी तुम इजिली ड्रॉ कर सकते हो। हाउ टू ड्रॉ द शेप? अब T यहाँ पे shape तुम्हारा sp3d का शेप मैंने क्या बता रखा? व्हाट इज द शेप ऑफ sp3d? बोलो, T shape व्हाट इज द शेप ऑफ sp3d? सॉरी, T shape हाँ, टी शेप। लेकिन 5 का शेप मैंने तुम लोगों को क्या बताया कि तुम लोग बना लो ट्राइगोनल प्लेनर। दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर, ओके। Trigonal planar means the central atom is I and there is a 3 bond pair. 3 bond pair, that means 3 fluorine, and always you have to put surrounding atom पहले एक्सियल पे रख दो, फिर जो बच गया उसको इक्वेटोरियल पे रख दो। बिकॉज कभी भी एक्सियल पे आप लोन पेयर नहीं रख सकते हो। एक्सियल पे ऑलवेज वी हैव टू पुट व्हाट? बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने सेंट्रल एटम रख दिया, यहाँ पे 3 तुमने फ्लोरीन रख दिया, एक्सियल पे 2 एक्सियल पे रख दिया, और एक तुमने इक्वेटोरियल पे रख दिया। फ्लोरीन तुम्हारे 3 हो गए, बाकी 2 पे तुम्हारे ये 3 बॉन्ड पेयर्स हो गए, और बाकी जो 2 लोन पेयर बच गए तुम इसको इक्वेटोरियल पे रख दोगे। तो दिस शेप इज कमिंग बेंट टी शेप। तो जितने भी तुम्हारे ट्राई हेलाइड वाले हैलोजन है, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। दिस इज मोनोहेलाइड, दिस इज ट्राई हेलाइड। अब तुम्हारा नेक्स्ट हो गया पेंटा वाला। अगर IF5 लेते हो तो अब इलेक्ट्रॉन डॉट आपका ऊपर था 1 2 3 4 5 6 7, बट यहाँ पे 5 फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5। 5 फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5, यानी 5 बॉन्ड पेयर है, और एक जो बच गया वो तुम्हारा लोन पेयर हो गया। सो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग? 5 bond pairs plus 1 lone pair, yani total is coming 6. 6 means what? square sp3d2, that d2 is square octahedral। pyramidal। octahedral के लिए आप इस तरह का शेप बना लेते हो। सेंटर में आपने आई रख दिया, और बाकी सारे सराउंडिंग में पहले फ्लोरीन रख दो, 1 2 3 4 and 5, and 1 is left, that it will be lone pair। and what is the shape of this? इसका शेप क्या हो गया? octahedral तो Square ज्योमेट्री है, pyramidal what? square pyramidal Square pyramidal, square pyramidal। I hope now it is very much clear to all of you। Yes, Vesper ma'am. theory। तो now I have given one example like this, you can solve all example। फिर तो तुम अब एक एग्जाम्पल, ये नहीं कि तुमने लर्न करना है कि IF का ये है तो फिर CL का लर्न करें। नो, नो नीड टू लर्न एट ऑल। ओनली अब IF7 बचा है, इसमें क्या तुम्हारे दिख रहे हैं? I के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं?
7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. ओके, 1 7 2 3 4 5 6 7 एंड 7 फ्लोरीन है. 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन, 7 फ्लोरीन. अगर तुम्हारे पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड 7 फ्लोरीन है तो यहाँ तो तुम्हारा कोई भी लोन पेयर नहीं बचा. टोटल 7 बॉन्ड पेयर्स एंड 0 लोन पेयर, नो लोन पेयर. ठीक है, 7 बॉन्ड पेयर मींस sp3 sp3d3 and this is pentagonal pentagonal bipyramidal. पेंटागन बना दिया और यहाँ पे आई सेंट्रल एटम रख के दिस इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल और हर कॉर्नर के साथ आपने फ्लोरीन अटैच कर दिया. 1 2 3 4 5 6 7 पेंटागोनल बाइपिरामिडल. ओके, बाइपिरामिडल. So this is the general concept of interhalogen. This is most important compound. That's why I'm discussing too much because shape exam में इसका बहुत important structure बहुत आता है exam में. तो no need to learn कि आप exam में याद करके गए, आप भूल गए, अपने shape नहीं draw कर पाए. नहीं, आपको सिर्फ concept पता होना चाहिए. Then you can write. Now quickly say what is the hybridization of this first? sp3. The second is what? sp3 sp3d Third is what? sp3d2 Two. sp3d3 sp3d3. What is the shape? Linear. What is the shape? linear t bent T shape अब यहाँ पे square general pyramidal pentagonal bipyramidal octa square bipyramidal including one lone pyramidal pair. और pentagonal यहाँ पे bipyramidal. तुम्हारा है pentagonal bipyramidal. You can draw over here. You can write the name even also. ठीक है? So this is the concept which you have to know. Now moving towards the next. So interhalogen is completed. I hope it is clear. ठीक है, तो आप एक बार देख सकते हो लैंग्वेजेस यू कैन सी. यहाँ तक तो हमने बता दिया था कि जनरल फॉर्मूला इज दिस and the larger halogen atom is a central atom and all are covalent. Interhalogen compounds are more reactive than halogen because more polarity and bond weaker, and the shape also here also I have written everything. Okay, so you can read it and you got everything. Okay, now this is not in syllabus कि ये तुम्हारा इस साल के deleted portion में आ गया. ये इंटरहैलोजन के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं अगर आपको रीड करना तो यू कैन रीड इट, नो प्रॉब्लम. ठीक है, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड. ठीक है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज डिलीटेड पोर्शन में है. अगर आपको रीड करना है तो कर सकते हो, बहुत टफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, रिएक्शन क्वाइट सिंपल है. ठीक है, नाउ ऑक्सो एसिड्स. ऑक्सो एसिड्स में अगेन वी हैव टू ओनली डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर. ठीक है, अब ऑक्सो एसिड्स में भी अगर तुम इसको देखते हो तो तुम्हें बहुत इजीली आई थिंक दैट आई कैन डिस्कस इन पेज बेटर. टेल मी यस और नो. Yes, ma'am. तो आई विल डिस्कस ऑन पेज एंड अगेन कम टू द उसमें फिर हम वापस आ जाएंगे किसमें क्या है. ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट. नया पेज क्यों नहीं आ रहा है? आई एम नॉट गेटिंग द न्यू पेज. कैसे करूं, न्यू पेज में जाऊं? मैं एंटर कर रही हूँ, जा नहीं रहा बच्चे. मैम ऐड न्यू पेज फाइल पे जाके. ओके, जस्ट